Hello students, today we will complete the exercise which we started last time, that is exercise 1.2. So first 4 questions we did. I am starting with the 5th one. Show that the signum function is from real number to real number. f of x signum function हमने किया था, इसका ग्राफ भी ड्रॉ किया था जब हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन और उनके ग्राफ्स किए थे. तो 1 होगा if x is greater than 0, it is 0 if x equal to 0, and it is minus 1 if x is less than 0. प्रूफ करना है, it is neither 1 1 nor 1. देखिए ध्यान से देखें, it is the function from real number to real number. Now you take any value greater than 0. Suppose I take 3. ठीक है, तो here it is associated with 1. It is real number. It is real number. Suppose I take 0, so naturally it is 0. If I take any other value, let's say 9, so 9 is again associated with 1. Let's take the value less than 0, minus 1. So it is minus 1. If it is minus 3, again it is minus 1. Number 1 it cannot be 1 1. ठीक है, 1 1 नहीं हो सकता, because one image will have so many infinite pre-images. जितने भी नंबर x की वैल्यू जो भी ग्रेटर देन 0 है उसके लिए एक ही इमेज है, दैट इज 1. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं because for one image there will be more than one pre-image. ठीक है, therefore function cannot be 1 1. And it is real number to real number. Suppose I take any real number. Let me take a 3. Now 3 doesn't has any pre-image. So you can write that. आप लिख सकते हो कि for so many real number या for all the real number except for 1, minus 1 and 0, there will be no pre-images. आप लिख सकते हो for the images other than 1, 0 and minus 1, they will not have any pre-image. Therefore the function is not onto, and hence it is neither 1 1 nor onto. Let me move on to the next one. That is 6th question. It is A set 1 2 3, set B 4 5 6 7, and let f is a function. क्या फंक्शन है ध्यान से देखना. It is 1 4. ऑर्डर पेयर्स में दिया 1 4. Now what does it mean? I will let you know. उसके बाद क्या 1 4 के बाद 2 5, 3 6. What else? It is a function. Now this being a function, इसका मतलब है कि f of 1 equal to 4. कहने का मतलब अगर मैं इसको मैपिंग में शो करूं, डायग्रामेटिकली शो करूं, ये A था सेट, ये B. A में क्या 1 2 3, 1 2 3, 4 5 6 7, इसमें 4 5 6 7. 1 की एसोसिएशन f ऑफ 1 का मतलब है 4. इसका मतलब है अगर मैं ये 1 ले रहा हूं तो यहाँ कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ये इसके साथ एसोसिएटेड है. तो आप मैपिंग कर लेंगे तो यू विल कम टू नो वेदर इट इज 1 1 और नॉट. 2 5 2 का 5 के साथ, 3 6 3 का 6 के साथ. Yes, the function is 1 1.
yes, the function is 1 1, but not onto. Onto क्यों नहीं है? 7 is the image which doesn't has any pre-image, तो इसलिए ये onto नहीं है. I think that is also clear. It was not a difficult one. So starting with the question 7, first part. The function is from real number to real number, right? F of x is given 3 minus 4x. मैं लिखता हूँ लेट f of x1 equal to f of x2, where this x1 and x2 they belong to a real number because it is real number to real number. ठीक है. Now what does this imply? fx1 equal to fx2. fx क्या है? 3 minus 2. ऐसे आएगा 3 minus 4x1 equal to 3 minus 4x2. क्लियर? तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं x1 equal to x2 आ जाएगा. Therefore function is 1 1. अब बाइजेक्शन के लिए आप ऐसा करें, लेट कर लें, ये जो एफ एक्स है इसको मैं वाई सपोज कर लेता हूं. नाउ एक्स को वाई की टर्म्स में ले आया है, therefore 4x equal to 3 minus y and therefore x equal to 3 minus y upon 4. Is there any real number y जिसके लिए x रियल नहीं होगा? There cannot be. अगर y डिनोमिनेटर में होता, 4y होता, तो for y equal to 0 x would not have been the real number. अगर होता है नहीं है तो मैं लिखूंगा for all y belonging to real number, x belonging to real number. That means हर y क्या इमेज है, हर इमेज की एक ना एक प्री इमेज है. Therefore function is onto. 1 1 हो गया, onto हो गया, तो आप लिख सकते हैं it is a bijection. So I am taking question 8 now. 8 है, sorry we have second part of 7th also, so let me take that. Question 7, it is second part. Again it is a function from real number to real number. F of x equal to 1 plus x square. लेट कर लेते हैं वही f of x1 equal to f of x2, where this x1 and x2 belong to real number. लिखना चाहते हैं तो लिख लें x1 x2 for all भी लिख लें belong to the real number. ठीक है. Now what does this imply? fx क्या था हमारा 1 plus x square, तो fx1 कितना आ जाएगा 1 plus x1 square equal to 1 plus x2 square. ये 1 1 कैंसिल हो गया. Therefore x1 square equal to x2 square रियल नंबर है, तो x1 आ जाएगा प्लस माइनस x2. The function cannot be 1 1. Therefore function is not 1 1. It is not 1. अब देखते हैं onto बनेगा, उसके लिए क्या करें, लेट कर लें y equal to 1 plus x square. Therefore x स्क्वेयर कितना आ गया y माइनस 1, x कितना आ गया प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 1. अब अगर y को मैं -3 ले लेता हूं तो अंडर रूट -4, x उसके लिए रियल नहीं होगा. y को मैं -5 ले लेता हूं तो x उसके लिए रियल नहीं होगा, तो मैं लिखता हूं फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल नंबर x डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर. एग्जाम्पल ले लें, इफ y इक्वल टू लेट्स से -7 ले लेते हैं, ठीक है, माइनस की कुछ भी वैल्यू, देन x इज नॉट रियल. क्यों नहीं रियल आएगा? वो बन जाएगा
अंडर रूट ऑफ -8 कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, तो आप लिख लें देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो फर्स्ट पार्ट 1 1 भी था, ऑन टू भी था, सेकंड पार्ट इज नीदर 1 1 नॉट ऑन टू। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट मी रेज दिस वन। So I am taking question 8 now. Let A and B be two sets. Show that F is to A cross B. Function क्या है? A cross B. A cross B में ऑर्डर पेयर बनेंगे is to B cross A. इसका मतलब है अगर यहाँ 1 3 या ऑर्डर पेयर है तो यहाँ आके वो 3 1 हो जाएगा। That means ऑर्डर पेयर 1 3 is associated with 3 1. A और B डिफाइन नहीं किए इन्होंने, तो that means A B are real numbers. Such that ये भी गिवन है, such that क्या f of a b equal to b a. This and this means the same thing. ये और ये का सेम मतलब है। a क्रॉस b सपोज एक ऑर्डर पेयर है मेरे पास, मैंने जैसे कहा सपोज 1 3 ऑर्डर पेयर है, ठीक है, नहीं इट इज गिवन a क्रॉस b। हाँ, तो ये यहां पे आके वो ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा 3 1 बन जाएगा, वो b क्रॉस a बन जाएगा। तो जो a क्रॉस b के एलिमेंट्स है वो यहाँ है, b क्रॉस a के एलिमेंट्स यहाँ पे है, ठीक है। और इसने बता दिया एसोसिएशन भी वही है, a b की एसोसिएशन किससे, b a के साथ। अगर यहाँ 1 3 है तो इसकी एसोसिएशन किससे बनेगी, 3 1 के साथ बनेगी। अब ऑर्डर पेयर्स की एसोसिएशन बनेगी, शो क्या करना है, इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, हमें बताना 1 1 भी है 1 2 भी है, ठीक है। मैं लिखता हूं लेट एक एलिमेंट ले लेते हैं ए बी एक पेयर, एंड एक ले लेते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है। या इस ढंग से कर लेते हैं, जैसे हम लिखते थे f of x1 इक्वल टू f of x2, मैं लिख रहा हूं लेट f of a1 a2 a1 b1 इक्वल टू f of a2 b2, ठीक है। Where अब a1 किसको बिलोंग करता है, a को, a2 किसको बिलोंग करता है, where a1 belong to a, b1 belong to b, a2 belong to b and b2 belong to a। तो a के दो एलिमेंट्स हैं a1 और b2, ठीक है। अब मैं लिखता हूं दिस इंप्लाइज व्हाट इज f of a1 b1, f of a b है तो क्या हो जाता है b a, तो इसका मतलब हो गया b1 a1 is equal to b2 a2। what does this implies, this implies b1 equal to b2 and a1 equal to a2। हम अलग अलग लेके चले थे, हमारे पास सेम आ गया, therefore function is 1, function is 1। क्लियर हो गया, तो फंक्शन क्या बन गया 1 बन गया। नाउ ऑन2 के लिए क्या होना चाहिए, ऑन2 के लिए हर इमेज की प्री इमेज होनी चाहिए, तो मैं लिखता हूं बिकॉज f of ab is equal to ba, therefore for every image we have the pre image। यानी a भी कुछ भी लो तो यहां ba आएगा, we have the pre image। इसका मतलब है कि b क्रॉस a तभी है जब a क्रॉस b डिफाइन हो रहा है, तो यहां पे कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसकी यहां पे प्री इमेज नहीं है, we have the pre image, therefore function is onto, and you can write therefore 1 1 हो गया, onto हो गया, and hence it is a bijection। now I am taking the 9th one।
question 9 now. Let's see what the question is. F is a function from natural number to natural number. F is a function from natural number to natural number. F of n is defined as n plus 1 upon 2 if n is odd. If n is odd, n by 2 if n is even. मैं आपको हिंट दूंगा इस क्वेश्चन का, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू आर गोइंग टू राइट इट योरसेल्फ. द क्वेश्चन इज स्टेट whether the function f is bijective, justify your answer. बताना बाइजेक्टिव है या नहीं. देखें, फॉर n इक्वल टू 1 f ऑफ n क्या बनता है? n 1 का मतलब है n ऑड है. ऑड हुआ तो n की वैल्यू इसमें आएगी 1 प्लस 1 बाई 2. अगर n ऑड है तो fn n प्लस 1 बाई 2 है, दैट इज 1. फॉर n इक्वल टू 2 f ऑफ n इक्वल टू, अब n इवन है तो ये वाला फंक्शन लेंगे, यानी कि 2 by 2 अगेन इट इज 1. कहने का मतलब है अगर मैं इसकी मैपिंग ड्रॉ करूं, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मैंने 1 लिया, इट इज ए नेचुरल नंबर, तो मेरा आंसर 1 आया. मैंने 2 लिया, ये नेचुरल नंबर है तो आंसर 1 आया. इसका मतलब एक इमेज की दो प्री इमेजेस, द फंक्शन इज नॉट 1 1. क्वेश्चन में पूछा है whether it is a bijection or not. When the function is not 1 1, it cannot be bijection. Bijection के लिए 1 1 और onto होना जरूरी है, तो ये 1 1 नहीं है. हाँ, yes, it will be onto होगा ये, ठीक है ना. For any of the natural number here, you will get the natural number here, ठीक है. अब 1 पुट करते हो तो 1 आया, अगर मैं यहाँ 2 पुट करता तो 1 आ गया, 3 पुट करता तो ये 2 आ जाता. तो फॉर एवरी नेचुरल नंबर हियर वी विल हैव द प्री इमेज onto बनेगा, लेकिन 1 1 ही नहीं बनना तो इट कैन नॉट बी ए बाइजेक्शन. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 10. ए सेट है रियल नंबर -3, सिर्फ 3 को छोड़ दें, बाकी सारे एलिमेंट्स रियल नंबर ले सकते हैं. और बी सेट है रियल नंबर -1. कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम a टू b. f ऑफ x क्या? x -2 अपॉन x -3. इज f11 जस्टिफाई योर आंसर? 1 1 एंड onto जस्टिफाई योर आंसर. देखिए, ये रियल नंबर -3 कहने का मतलब है एक ही चीज परेशान कर सकती थी हमें कि यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x 3 हो गया तो ये 0 बनेगा, ठीक है. वो उन्होंने पहले ले लिया कि हमने 3 नहीं लेना, बाकी कोई भी रियल नंबर लेना. तो मैं लेट कर लेता हूं f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 फॉर 1 1 वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू, इसको फॉर ऑल भी कर ले, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, x1 और x2 किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट A को, दैट इज r-3, ठीक है. This implies x1 minus x2 upon x1 minus 3, x1, sorry, it is not x2, it is 2. x1 minus 2 upon x1 minus 3 equal to x2 minus 2 upon x2 minus 3. So what does this imply? It will imply x1, ये I am multiplying it here and multiplying it here. x1 into x2, it is minus 3x1 minus 2x2 plus 6 is equal to, here now x1 x2 minus 2x1 x1 x2 minus 2x2 minus 3x2 and plus 6. ये plus 6 कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, तो what I will get, that is minus 3x1 यहाँ पे है, तो इस x1 को यहां ले आओ तो बचेगा -x1 इक्वल टू, यहां पे -3x2, इस 2x को यहां ले आओ तो बचेगा -x2. एंड व्हाट डज दिस इंप्लाइज? x1 इक्वल टू x2. सो देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1.
ये फंक्शन 1 1 बन गया। अब इस फंक्शन को हमने देखना ऑन है या नहीं, तो ये आप लिख लेंगे लास्ट लाइन, बिकॉज वी हैव टेकन f of x1 इक्वल टू f of x2 और कंक्लूड किया x1 x2 के इक्वल है, दैट मींस फंक्शन इज 1 1। अब ऑन कैसे प्रूव करना है, उसके लिए मैं लिखता हूं लेट y इक्वल टू x minus 2 upon x minus 3। दिस इंप्लाइज yx minus 3y इक्वल टू x minus 2। मैं लाऊंगा x को y की टर्म्स में, देखें इस x को यहां शिफ्ट करो, yx minus x इक्वल टू minus 2 plus 3y, x इक्वल टू, मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, x स्टेप लिख रहा हूं, x कॉमन लिया तो यहां y minus 1 बचा, यहां x आ गया minus 2 plus 3y अपॉन y minus 1। y को कोई भी रियल नंबर ले लें, सिर्फ 1 ही ऐसा है जिसके ऊपर x रियल नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो y एलिमेंट है ये सेट b का एलिमेंट होता है और b में उसने दे रखा है इट इज r minus 1 लेना ही नहीं है, तो मैं लिखता हूं फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r minus 1 x बिलोंग्स टू द रियल नंबर -3, x इसको बिलोंग करता है, ठीक है। अब हर y के लिए अगर हम ये 1 नहीं लें, रियल नंबर कोई भी ले लें, x जो है रियल नंबर है, therefore it is onto function। तो can you write it is onto function? So we will write कि for this belonging to real number x belongs to the real number and therefore it is onto function। 1 1 भी हो गया, onto भी हो गया, तो नेक्स्ट लाइन आप लिख सकते हैं hence it is a bijection। आई एम टेकिंग द लास्ट 2 क्वेश्चंस जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, एमसीक्यूज है और आप देखेंगे उसको कैसे करें। लेट मी स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन 11। आई एम टेकिंग क्वेश्चन 11 नाउ। फंक्शन इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, f of x। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया x4, x2 हो, x4 हो, x6 हो। अगर मैं लूंगा f of x1 इक्वल टू f of x2, ठीक है, इफ आई सपोज लेट f of x1 इक्वल टू f of x2, तो लास्ट में मेरे पास मिलेगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट 1 बनेगा, 1 1 नहीं बनेगा, और ऑन2 भी नहीं बनेगा बिकॉज सॉरी, अगर मैं इधर, क्योंकि इट इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, अगर मैं यहां पे एक ले लेता हूं -3, देयर इज नो नंबर हुज रेज टू पावर 4 विल बिकम -3, हेंस इट इज नॉट ऑन2। तो अब देख लेना 1 1 है ना ऑन2 है, तो कौन सा पार्ट आना चाहिए, 11, इट शुड बी डी पार्ट, f इज नीदर 1 1 नॉर ऑन2, सो डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। 12 देखते हैं। 12th है फंक्शन इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, व्हाट इज f of x, इट इज 3x। अगर आप f of x लेके चलते हैं, लेट f of x1 इक्वल टू f of x2, you will get 3x1 equal to 3x2 and ultimately you will get x1 equal to x2, therefore function is 1 1। onto के लिए मैंने बताया आप ले लें y equal to 3x, x को लाए y के टर्म्स में, x equal to y by 3, so for any y to be real x is real, therefore it is onto, so it is a bijection। so which part we should have, the first part only, f is 1 1 and onto। so by this we have completed exercise 1.2। so next topic is composition of functions and invertible function। but invertible function के पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 1 और onto फंक्शन क्या है। एक फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो बाइजेक्शन होगी। बाइजेक्शन का मतलब है जब फंक्शन 1 1 होगा, onto होगा, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और हम उसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोलेंगे। तो नेक्स्ट वी विल टेक अप दिस कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन।